Hey everyone, welcome back to my channel, and in today's video I will be telling you how to solve the questions related to topo sheet. But before that we should know about the northings and easting and the basic rules of the topo sheet. So first we'll be starting with the definition of eastings. Eastings are the vertical lines with values increasing towards the right or east. The numbering starts from 00 to 99 in easting. So these vertical lines are known as eastings. They look like northerns but actually they are eastings, and they are red lines, and also they start from 00 to 99. Now talking about northings. Northings are the horizontal lines with values increasing towards the north. The numbering starts from 00 to 99. These are also the red lines. So these are the northings. Now I'll be telling you how to mark a place. Like suppose this is the area. This is an area by the letter A, and we have to find the 4-figure grid reference. So in class 10th you are not given the 6-figure grid reference, but you are given the 4-figure grid reference. So talking about this is area A, and we have to find the 4-figure grid reference of it. Now what happens is that first you will see the eastings. These are the eastings, so first we'll see to it. So we'll be taking the previous easting, like 23. So we'll write it here 23. And now talking about the northings, see, these are the northings. So here we'll be taking the previous northing, that is 00. So it will be 2300. एंड कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जैसे तुम्हारा डॉट यहाँ पर है लेकिन एरिया यहाँ पर दिखा रखा है, तो पहले तुम डॉट को रेफ़र करोगे. एग्जाम्पल सपोज़ यहाँ पर एक छोटा सा डॉट है, तो अब क्या होगा, तुम्हें डॉट को रेफ़र करना है, तो इसका ईस्टिंग और नॉर्थिंग्स हमारा हो जाएगा 22 एंड 00. एंड हम इसमें ए को नहीं कंसिडर करेंगे अगर हमारा डॉट यहाँ पर होगा. Now we'll be talking about the different types of scale in topo sheet. There are 3 types of scales. One is statement scale. It is easy to understand, but the demerit is that the calculation and conversion is difficult and cannot be converted to other units easily. अब लीनियर स्केल की बात की जाए तो एक ऐसा स्केल है जो एक लाइन में रिप्रेजेंट होता है. जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बना रखी है, एंड इसमें एक छोटा सा रूल है जो आपको याद रखना होगा. 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. एंड मेरिट इसका ये है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है लेकिन कंस्ट्रक्शन डिफ़िकल्ट होती है. ये इसका डिमेरिट हो गया. अब बात आती है रेशो स्केल की. रेशो स्केल, द स्केल इज़ टेकन इन अ रेशो द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. RF को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं. ऑफ द मैप इज़ 1:50,000 यूनिट्स, विच मीन्स 1 यूनिट ऑन द मैप इज़ इक्वल टू 50,000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड. यानी कि जो 1 यूनिट है मैप में वो 50,000 यूनिट्स के बराबर है ग्राउंड में. It is also known as the universal scale or the international scale, as it can be converted into any unit of measurement. तो इसको हम universal scale या international scale भी कहते हैं. So now we'll be talking about the most important thing, which is the color. तो आपने टोपो शीट में बहुत सारे different types of color देखे होंगे. तो इसमें येलो कलर क्या represent करता है और बाकी कलर क्या represent करता है, मैं आपको just अभी बताऊँगी. Starting with the yellow color. येलो कलर रिप्रेजेंट्स कल्टिवेबल लैंड, यानी कि इसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल होती है, एंड द ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो एग्रीकल्चर. रिलीफ ऑफ दिस एरिया इज प्लेन, फ्लैट, लो लाइंग टेरेन. ग्रीन कलर डेपिक्ट्स फॉरेस्टेड एरियाज, यानी कि फॉरेस्ट्री होती है. अब कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि येलो कलर हमारा कुछ और होता है एंड ग्रीन कलर हमारा एग्रीकल्चर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. येलो कलर एग्रीकल्चर की लैंड को सिग्निफाई करता है, एंड ये जो ग्रीन कलर है वो डिपिक्ट करता है फॉरेस्टेड एरियाज, यानी कि यहाँ पर फॉरेस्ट्री होती है. रिलीफ ऑफ दिस एरिया इज़ ओपन मिक्स जंगल एंड डेंस मिक्स जंगल. तो तुम्हें क्वेश्चन ऑफनली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में. अब थर्ड में आते हैं वाइट कलर डिपिक्ट्स रॉकी एंड अनकल्टिवेबल एरिया. ओपन स्क्रब शोज नेचुरल वेजिटेशन, ग्रासलैंड एरिया. कैटल rearing and animal rearing is the main occupation here. Dry climatic condition and there is less rainfall. वाइट कलर हमें बताता है एक रॉकी एंड अनकल्टिवेबल एरिया, और यहाँ पर ओपन स्क्रब होते हैं बहुत सारे,
यानी कि ये नेचुरल वेजिटेशन, जैसे ग्रासलैंड एरिया हो गया हमारा। तो यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन से दो चीज़ें होती है, वो कैटल रेयरिंग एंड एनिमल रेयरिंग। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक वाइट कलर का कोई, समझ लो आपको टोपोशीट दे रखी है, उसमें वाइट कलर का एक पैच ऑफ लैंड है, तो आपको पूछ सकते हैं इसमें ऑक्यूपेशन क्या होती है। तो आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर रॉकी एंड अनकल्टिवेबल एरिया होता है, तो इसमें कैटल रेयरिंग एंड एनिमल रेयरिंग होगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होती है। ब्लू कलर शोज पेरिनियल वाटर बॉडीज़। अब देखो सीजनल और पेरिनियल के बीच में क्या डिफरेंस है। सीजनल में ये होता है कि यहाँ पर वाटर सप्लाई सिर्फ मतलब पूरे होल ईयर नहीं होता, थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है, सिर्फ कभी कभी होता है। लेकिन पेरिनियल की बात की जाए तो इसमें वाटर सप्लाई थ्रू आउट द ईयर होता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैन मेड फीचर्स के बारे में। ये सारे सिंबल्स हैं, मैं आपको समझा नहीं सकती उन सिंबल्स के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स दिए हैं। जैसे ये मेटल रोड हो गया, ये अनमेटल रोड, और ये कार्ट ट्रैक हो गया, ये पैक ट्रैक हो गया, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। एंड ये सारे के सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा ट्यूबवेल हो गया, ये हमारा वेल हो गया, लाइन पेरिनियल वेल। एंड इसमें सब कुछ बता रखा है। ब्रैकिश हमारा होता है वाटर इज़ नॉट फिट फॉर इरिगेशन ड्रिंकिंग, यानी कि इसमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ये सारे के सारे एक्वाडक्ट, स्प्रिंग। एंड ये मैन मेड फीचर्स आते हैं, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ लाइन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। एंड ये बाकी सारे हमारे हो गए। आप इनका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। जैसे ये हो गया पेरिनियल स्ट्रीम, सीजनल स्ट्रीम, ब्रोकन ग्राउंड एंड मैनी मोर लाइक दीज। एंड अब हम आते हैं ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। देखो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, द पैटर्न इन विच द रिवर फ्लोज। अब 3 टाइप के पैटर्न होते हैं। टोपो शीट में क्वेश्चन ऑफनली आते हैं ये, कि ऐसे वो पूछते हैं कि इसका ड्रेनेज पैटर्न बताओ। तो जैसे हमेशा याद रखना, कभी भी येलो कलर में इसके, जैसे समझ लो ये है हमारा डेंड्रिटिक, इसको डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। इस ड्रेनेज पैटर्न को हम डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं, यानी येलो कलर में रिप्रेजेंट होता है। तो जब भी व्हेन द रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज मेक अ पैटर्न ऑफ अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, इट इज़ अ डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम। सो अगर कभी भी आपको दिख जाए कोई ब्रांच, ये ट्री की ब्रांचेस जैसा ही दिख रहा है, तो अगर आपको वैसा पैटर्न दिख जाए और ये येलो कलर में हो, तो डेफिनेटली वो हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न होगा। अब ट्रेलिस के बारे में बात करते हैं। व्हेन द रिवर इज एन ऑल्टरनेट बेड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, व्हेन द स्ट्रीम्स मीट एट राइट एंगल। बस आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा वाइट में होता है, इसका सराउंडिंग पूरा वाइट होता है, एंड ये राइट एंगल में, देखिए राइट एंगल। अब रेडियल स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। ये कुछ ऐसी होती है, सर्कुलर उसमें होती है, एंड साइड में इसमें लाइंस बनी रहती हैं। रेडियल स्ट्रीम्स मूव आउट इन अ सर्कुलर पाथ फाउंड इन हिली रीजन्स, सर्कुलर कंटूर लाइंस। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर कंटूर लाइंस बनी रहती है। अब हम लास्ट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न है। एरिया शो स्कैंटी रेनफॉल, पोरस सॉइल, सैंडी सॉइल। अभी जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न है वो 2 वजह से डिसअपियर कर सकता है। पहला रीज़न ये है कि इसकी सॉइल पोरस या फिर सैंडी है, इसलिए ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड ये जो ड्रेनेज पैटर्न डिसअपियर हो जाता है। या फिर यहाँ पर काफ़ी कम रेनफॉल होती है, एंड ये स्टोनी वेस्ट होता है, एरिया कवर विद स्टोन्स एंड रॉक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम आते हैं कंटूर्स पे। कंटूर्स आर द इमेजिनरी लाइंस विच जॉइंस ऑल द प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल। तो कंटूर्स हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है, एंड जितना पास जो कंटूर लाइंस होगी, यानी कि उतनी स्टीप स्लोप है, लेकिन जितनी दूर होती कंटूर लाइंस उतना जेंटल स्लोप होता है हमारा। एंड जब भी आपको कोई नंबर दिखे तो हमेशा कंटूर हाइट होता है, एंड वो हमेशा 20 के मल्टीपल्स में ही होता है। एंड कंटूर इंटरवल डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव कंटूर लाइंस। स्पॉट हाइट और हमारे कंटूर हाइट में क्या डिफरेंस है कि स्पॉट हाइट में हमारा एक छोटा सा सर्कल बना रहता है, लेकिन कंटूर हाइट में सिंपल नंबर लिखे रहते हैं। और ये बाकी सारे हैं, जैसे समझ लो एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। समझ लो ये हमें डॉट करके 6R दे रखा है। इट मीन्स द रिलेटेड डेप्थ ऑफ द वेल इज 6 मीटर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइन पेरिनियल वेल हमारा सर्कुलर में होता है, ब्लू कलर का होता है। 6R लिख रखा है, मतलब 6 मीटर होगा, एंड देयरफॉर ये सारे भी ऐसे ही होंगे। एंड ये हमारे ये लास्ट के सिंबल साइन कन्वेंशंस हो गए, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। And now we'll be coming to the main part,
दैट इज़ डूइंग द टोपोशीट क्वेश्चंस। अब मैंने आपको हर चीज़ बता दी है कि येलो कलर क्या डिपिक्ट करता है, ग्रीन कलर क्या डिपिक्ट करता है, डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, नॉर्थिंग ईस्टर्न क्या होती है, 4 ग्रिड रेफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो एंड नाउ विल बी कमिंग टू द मेन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द प्लेस हैविंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बनारस रिवर एंड द सरोद नाला। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है दो रिवर जहाँ मीट करती है, एंड ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जैसे एक रिवर है वो जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा बनारस रिवर ये है एंड हमारा सरोद नाला ये है। अब ध्यान से देखो वो कहाँ पर मीट कर रही है, सरोद नाला है, ये यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ आ रहा है। अब बनारस रिवर और सरोद नाला करेक्ट इस पॉइंट में मिल रहे हैं, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर देखना होगा। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ईस्टिंग्स। ईस्टिंग्स हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, तो इससे पहला वाला ईस्टिंग क्या हो गया 24 एंड ये हमारा नॉर्दिंग हो गया। तो इससे पहला वाला नॉर्दिंग क्या हो गया, देखिए ये हो गया 94, तो ये 2494 हो जाएगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस के रिलेशन में है, तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है अभी। पार्ट सी, व्हाट इज़ द कंपास डायरेक्शन ऑफ सोडापुर फ्रॉम बदली कोठा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दी इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बदली कोटा और सोडापुर कहाँ पर है। सोडापुर है हमारा यहाँ पे एंड बदली कोटा हमारा यहाँ पर है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द कंपास डायरेक्शन ऑफ सोडापुर फ्रॉम बदली कोटा। फ्रॉम के बाद जो भी प्लेस है हमें वहीं से देखना है। उन्होंने फ्रॉम बदली कोटा बोल रखा है, तो यानी कि हमें बदली कोटा पहले लेना पड़ेगा। अब बदली कोटा से सोडापुर में कितना, कौन सा डायरेक्शन है, देखो नॉर्थ में है ना, और ईस्ट, तो ये हो जाएगा सोडापुर लाइज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम बदली कोठा। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम और टू कहाँ दे रखा है। व्हाट इज़ द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द सरोद नाला, व्हाट टाइप ऑफ रिवर इज़ सरोद नाला। अब अगर कभी भी हमें एक रिवर का डायरेक्शन पूछा जाए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सोर्स ऑफ द रिवर कहाँ है। अब देखो जैसे यहाँ देखेंगे तो ये तो सोर्स है नहीं रिवर का, तो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है वो हमें जानना होगा। तो रिवर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है, यानी कि सरोद नाला यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेकिन हमें इसमें फ्रॉम और टू दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे ध्यान से देखा जाए तो देखो ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है एंड ये कहाँ तक जा रही है, साउथ वेस्ट में, तो इसमें हमें फ्रॉम और टू दोनों चीज़ लिखनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रिवर इज़ सरोद नाला। तो हमने देखा ही था कि सरोद नाला एक ड्राई सीजनल रिवर है एंड क्योंकि उसमें ब्लैक डॉट्स बने थे तो हमारा ड्राई रिवर बेड हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, मेजर द डायरेक्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ द मेटल रोड फ्रॉम 8R इन ग्रिड रेफरेंस 2794 टिल द पॉइंट इट इंटरसेक्ट्स विद अनदर मेटल रोड एट 178। इसमें हमें 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस 2794 दे रखा है, तो ये 27 एंड 94 यानी कि यहाँ पर होगा। अब अगर इसको जूम आउट करा जाए तो 8R छोटा सा इसमें लिखा है, तो इसमें 8R लिख रखा है यहाँ पर, ये छोटा सा 8R है एंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट इंटरसेक्ट्स विद अनदर मेटल रोड एट 178 यहाँ हो गया हमारा। तो इनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, आपको पहले स्केल लेना पड़ेगा एंड देन इसका समझ लो हमारा आ गया, मेजर करने के बाद ये 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मैंने आपको एक फार्मूला दिया था 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर वाला, तो आप इसको अप्लाई करके एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा 2.2 किलोमीटर्स। अब हमारा F वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स इन द रीजन शोन इन द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट, गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे इस पूरे मैप में अगर हम सेटलमेंट्स को देखें तो हमें कहीं भी लीनियर सेटलमेंट तो दिख नहीं रहा है। लीनियर सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जिसमें हाउसेस एकदम लाइन की फॉर्म में होते हैं, एंड क्लस्टर्ड या फिर न्यूक्लिएटेड ये दोनों अलग होते हैं। क्लस्टर्ड होता है जो बहुत पास से यहाँ पर दिख रहा है, एंड न्यूक्लिएटेड जो बहुत न्यूक्लिएटेड कभी मतलब यही होता है, स्कैटर्ड का मतलब होता है जो बहुत दूर दूर होते हैं। तो हमें 2 टाइप के सेटलमेंट दिख रहे हैं और वो है हमारे, एक हो गया हमारा
न्यूक्लिएटेड एंड यानी कि क्लस्टर्ड। तो सबसे ज़्यादा हमें न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड दिख रहा है, तो ये इसका आंसर न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड हो जाएगा। अगर इस पूरे मैप को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमें कोई भी लीनियर सेटलमेंट नहीं दिख रहे। लीनियर सेटलमेंट यानी कि जहाँ पर हाउसेस एकदम लाइंड होते हैं। और हमारा बाकी दो हमारे सेटलमेंट्स हो गए, एक स्कैटर्ड सेटलमेंट एंड एक हो गया हमारा न्यूक्लिएटेड या फिर क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो यहाँ पर हमें ना ही लीनियर सेटलमेंट दिख रहे हैं और ना ही हमें यहाँ पर स्कैटर्ड सेटलमेंट दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें इसमें न्यूक्लिएटेड या फिर क्लस्टर्ड सेटलमेंट दिख रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यानी कि मेटल रोड और रिवर्स के अगल बगल में ये सारे क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स हमें दिख रहे हैं। सो द आंसर विल बी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड हियर। अब हम जी पार्ट में आते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट? ब्लैक कर्व लाइन्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। अब हम कोई सी भी रिवर ले लेते हैं, जैसे कि ये रिवर ले ली हमने यहाँ पर, ये जो दिख रही है यहाँ पर। तो इसमें पूछ रखा है कि बैंक्स, मतलब ये जो ब्लैक कर्व लाइंस अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये सारे हमारे जो दिख रहे हैं वो ब्रोकन ग्राउंड है। मैंने आपको जब कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स दिखाए थे तब मैंने आपको बता दिया था कि ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है। ब्रोकन ग्राउंड तब बनता है जब ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड होते हैं। तो ये हमारे ब्रोकन ग्राउंड हो गए। अब नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा द ब्लू लाइन इन द बेड ऑफ द सीपू रिवर। अब ये है हमारी सीपू रिवर और आपको यहाँ पर ब्लू लाइन दिख रही होगी, ब्लू कलर की है असलियत में। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है हमें एक पेरिनियल वाटर चैनल। पेरिनियल वाटर चैनल वो होता है विच रिसीव्स द वाटर थ्रू आउट द एयर। अब हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फाउंड इन द फिगर ग्रिड स्क्वायर 2698। अब मैंने आपको ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बता रखा है कि 3 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, एक डेंड्रेटिक, एक ट्रेलिस एंड लास्ट वन इज रेडियल। अब हमें देखना है कि 2698 पे कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है। 26 यानी कि इसी कॉलम में होगा कहीं वो, एंड 98 ये हो गया यानी कि ये यहाँ पर होगा। 2698 यहाँ पर, ये इसलिए रेफ़र कर रहे हैं अभी के लिए। तो आपको दिख ही रहा होगा ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है। ये क्योंकि 90 डिग्री में पड़ रहा है तो हमारा ट्रेलिस्ड ड्रेनेज पैटर्न हो गया, क्योंकि इसमें राइट एंगल्स में स्ट्रीम बह रही है। अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्टेट 2 टाइप्स ऑफ डैम्स शोन इन द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट। अब जो ये क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ। तो 2 टाइप्स ऑफ डैम्स शोन इन द गिवन मैप एक्सट्रैक्ट आर मेसनरी एंड अर्थवर्क। ये सिंपल उन्होंने बता रखा है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बाय चांस आ जाए तो ये 2 ही टाइप के होते हैं डैम्स, मेसनरी एंड अर्थवर्क। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स स्ल्यूस एंड एक्वाडक्ट्स। अब मैंने यहाँ पर स्ल्यूस की डेफिनेशन लिख रखी है। स्ल्यूस इज एन आर्टिफिशियल चैनल फॉर कैरिंग वाटर विद अ गेटेड ओपनिंग एट वन एंड। सिंपल इसकी डेफिनेशन पूछ रखी है तो इसकी ये डेफिनेशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्वाडक्ट, इट लुक्स लाइक दिस। ये हमारा एक्वाडक्ट हो गया। एक्वाडक्ट एक मैनमेड फीचर होता है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल चैनल कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर नॉट नेसेसरली फॉर इरीगेशन पर्पसेस। तो ये एक मैनमेड चैनल होता है जो बना रहता है वाटर सप्लाई करने के लिए, एंड ये सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए नहीं बना रहता, वो दूसरे पर्पस के लिए बना रहता है। अब ये सारे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन था इनमें से रिवर वाला, व्हाट इज़ द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द सरोद नाला। व्हाट टाइप ऑफ रिवर इज सरोद नाला। अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द सरोद नाला बोल रहे हैं तो ये हमारा सरोद नाला है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। या तो पहले हमें सोर्स ऑफ द रिवर देखना पड़ेगा। सोर्स ऑफ द रिवर है हमारा ये, और दूसरा हमें क्या देखना पड़ेगा, डिक्रीजिंग स्पॉट हाइट, जहाँ से जैसे हायर टू लोअर, यानी कि हमें डिक्रीजिंग स्पॉट हाइट देखनी पड़ेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा 195 हो गया, ये स्पॉट हाइट है हमारी, एंड ये वाला हमारा 172 हो गया, एंड देन इट इज़ 168। तो डिक्रीज़ हो रही है स्पॉट हाइट, यानी कि ये
इससे हमें इसका डायरेक्शन पता चल सकता है। एंड लास्ट वाला हमारा एरो है। किसी किसी रिवर्स में हमें एरो दिखाए रहते हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सीपू रिवर में हमें दिखा रखा है एक एरो, तो हमें पता चल जाएगा। अगर बाय चांस इसका डायरेक्शन पूछते तो हम आसानी से बता देते दैट इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू दी साउथ वेस्ट। एंड जैसे हमने जब ड्रेनेज पैटर्न कराई था, तो हमने इसको ट्रेलिस बोला था। तो ट्रेलिस ज़्यादातर वाइट कलर में होता है, एंड इसमें भी ये वाइट पैचेस बन रखे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रेलिस पैटर्न तो होता है और 90 डिग्री में तो होता है, लेकिन वो येलो कलर में होता है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भी डेंड्रिटिक पैटर्न होगा वो हमेशा येलो होगा एंड ट्रेलिस वहाँ पर वाइट होगा। कभी कभी ट्रेलिस हमारा जो पैटर्न बना रहता है उसमें हमारा वाइट कलर के बजाय येलो कलर भी हो सकता है। So that is all for the video. Hope you like it. Subscribe to the channel and hit the notification bell for more updates. Thank you.